Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I will make a pizza without onion and garlic. So there will be no onion, no garlic in that. So first of all I will cut tomatoes like this. Then some capsicum again in the same way. Then these cheese slices I'm using because I have never made pizza before, so I don't want to take any risk and order something very expensive. So this is a pizza base. As of now I have just got four of them, so I'm just going to try to make it, and agar ye अच्छे निकल गए तो I will buy them more and I will make. So this sauce is especially for people who are not consuming onion or garlic because of any religious reasons, or some they are following some rituals or something. So let's start to make this. So why there is some because of some religious reasons, so people in my family are not having onion and garlic um, for some days. So I thought that I should make them something tasty, and of course some and unhealthy. So I have got these things and I will be keeping it very minimal. First of all I will apply this pizza sauce on the pizza base. We should not waste anything, so I will be using everything. Then it is looking very rich. um, so I will be using very generous amount. I'm going to coat it a lot of it, because since I'm not even going to use oregano, because oregano also has onion and garlic, so this is my only source of flavor in this entire pizza. So I will be adding a lot of pizza sauce on this. I may be adding one more spoon of this, and I will be spreading it evenly, and and on this I will be putting some cheese slices. Uh, instead of using mozzarella cheese or some other kind of cheese, because I thought that I do not want to. I have not even dealt with those kind of cheese before, so I have only dealt with this one, so I'm a little bit familiar. I think I want to put some slices on it, and then I will microwave it. It will melt automatically. But while doing this I realized that since I have not kept all these slices in the fridge, they have already melted. So अब इसमें से there was no slice. They were all mixed up together. So what I did was मैंने ऐसा फोक से इसको निकालने की कोशिश की, क्योंकि मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा था. सो इफ़ यू आर ऑल्सो यूजिंग चीज़ स्लाइसेस, मेक श्योर कि आप उसको पहले फ्रिज में रख लीजिए, उसके बाद यूज़ करो. बिकॉज़ मुझे लगा था बहुत इजी स्टेप हो जाएगा, मैं 3 स्लाइसेस रख दूँगी या 4 रख दूँगी और उसके ऊपर वेजिस रख दूँगी, बट ऐसा हुआ नहीं. जैसे कि आप देख सकते हो, ये बहुत ही ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है. तो इसको इनके रैपर्स से निकालने के लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई. मैं फ़ोक के साथ यूज़ कर रही थी, बट एक बार निकलने के बाद भी वो उसके ऊपर अच्छे से बैठ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा बेस पे ऑलरेडी सॉस लगा दी है और ये बहुत स्लिपरी हो रहा था सरफेस. सो ये सारा इसका एस्थेटिक्स ख़राब हो गए. मतलब आई थॉट कि अच्छे से निकलेगा, मैं स्लाइस लगा दूँगी उसके ऊपर, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ. आई कैन नॉट लीव इट मिड वे, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा सामान वेस्ट हो गया है ऑलरेडी. सो समहाउ आई विल ट्राई टू मेक इट. आई हैव ऑल्सो कट टोमेटोज़ एंड कैप्सिकम. मैं सोच रही थी उसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी इसके ऊपर, बट अभी कुछ फ़ायदा नहीं है इसको डेकोरेशन का, बिकॉज़ ये इस तरह से अगर चीज़ रहेगा तो इट वोंट लुक नाइस एनीवे. बट चलो, वॉट एवर, मे बी आफ्टर कुकिंग इट विल look nice. So what I will do now is that I will just throw some veggies over it. Earlier I was thinking of you know, putting them in a particular symmetry. Now I'm just throwing it like this. Sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. इट इज़ नॉट लुकिंग बैड एक्चुअली. ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. एक्चुअली इट इज़ लुकिंग लाइक अ पिज़्ज़ा अभी से ही.
सो अब इसके ऊपर ऑरिगेनो नहीं डाल सकते हैं बिकॉज़, और चिली फ्लेक्स भी मेरे पास नहीं है। ऑरिगेनो इसीलिए नहीं डाल सकते क्योंकि उसके अंदर भी उन्होंने गार्लिक और अनियन क्रश करके डाला होता है थोड़ा बहुत। सो मेन मकसद ही यही है कि हम अनियन गार्लिक के बिना पिज़्ज़ा बना रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। सो इसमें से अब मैं ये देसी काम करूँगी। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम रेड चिली ओवर इट बिकॉज चिली फ्लेक्स भी नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी एडिंग अ लिटिल बिट फॉर सम फ्लेवर। और उसके बाद अब मैं इसको माइक्रोवेव कर दूँगी। इट इज़ लुकिंग नाइस, मतलब आई थिंक थोड़ी बहुत उम्मीद मुझे हो गई है कि शायद अच्छा हो सकता है। तो अभी इसको हम डाल देते हैं ओवन के अंदर। और इसको मैं सोच रही हूँ, मैंने जहाँ देखा है जो मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें उन्होंने 10 मिनट बोला है रखने के लिए, तो मैं भी 10 मिनट ही रखती हूँ इसको। और अगर ज़्यादा कुछ धुआं निकलेगा या जलने का स्मेल आएगा तो फिर मैं पहले ही बंद कर दूँगी। सो फ़िलहाल मैं इसको 10 मिनट तक रख देती हूँ करने के लिए। इन द मीन टाइम जब तक वो गर्म हो रहा है अभी मैं नेक्स्ट वाला पिज़्ज़ा बनाऊँगी। लेकिन इसमें मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं चीज़ स्प्रेड कर लूँ, क्योंकि चीज़ का तो बहुत ही मेल्ट ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉपर स्लाइस मेरे को नहीं मिल रही है। सो मैं इस तरह से बस इसको कैसे भी घिस के जितना मेरे से हो सकता है, मतलब आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीथिंग। सो जितना भी चीज़ मेरे से यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है मैं उसको करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं बेस के ऊपर सॉस लगा दूँगी तो उसके बाद चीज़ को स्प्रेड करना, क्योंकि चीज़ बहुत स्टिकी है, तो फिर वो तब बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे लास्ट पिज़्ज़ा जो मैंने पिछला पिज़्ज़ा बनाया था उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी मैं इसको पहले 2 स्लाइसेस चीज़ की मैं ऐसे ही स्प्रेड करने वाली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. सो इट इज़ गेटिंग रियली मेसी। बहुत अभी तो ये चीज़ लगाने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट आई हैव प्रॉपरली वॉश्ड माई हैंड्स बिफोर मेकिंग द पिज़्ज़ा, इन केस यू आर वंडरिंग वाई आई एम नॉट वेयरिंग द प्लास्टिक ग्लव्स। So because this is my home and I am just making it for ourselves only, so the cleanliness and hygiene is the top priority here. So बहुत मुश्किल से 2 स्लाइसेस मैंने लगाई हैं। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी। अब ये लास्ट टाइम से थोड़ा सा मैंने अलग किया है बिकॉज़ ये थोड़ा कन्वीनियंट है, ईज़ी रहेगा मेरे लिए भी इसको स्प्रेड करना और इसके ऊपर वेजिस भी डालना। बट आई थिंक मिक्स तो हो ही जाएगा, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम सॉस को पहले डालें या बाद में डालें। सो यही मैं कर रही हूँ, जेनरस अमाउंट लगा रही हूँ बिकॉज़ फ्लेवर्स इसमें कुछ ऐड कर नहीं रहे हैं, ऑरिगेनो भी नहीं है और चिली फ्लेक्स भी नहीं है, तो फिर सॉस से ही काम चलाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर अभी मेरे को कोई भी एंथुसियाज़म रह नहीं गया, सो आई एम जस्ट थ्रोइंग द वेजीज़ हियर। एक बार देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा जलने का स्मेल आ रहा था, इसको अभी बंद ही कर देती हूँ मैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. सो इट इज़ ऑल्सो लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा। और अभी ये जो बचे हुए चीज़ स्लाइसेस हैं, आई विल बी वेरी केयरफुल एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फ्रिज सो दैट इस तरह से ना हो और चीज़ इतना वेस्ट ना हो। नाउ आई विल क्लीन थोड़ा बहुत, जितना क्लीन मेरे से हो सकता है, बिकॉज थोड़ा सा मेस क्रिएट हो गई है किचन में। और ये पिज़्ज़ा इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग दैट बैड। आई थिंक इट विल टेस्ट ऑल्सो वेल बिकॉज इट विल ऑल डिपेंड ऑन द सॉस, और सॉस बहुत अच्छी है। सो आई वॉज थिंकिंग कि इसको भी निकाल लेना चाहिए फर्स्ट पिज़्ज़ा को, और जो दूसरा वाला मैं अभी इसमें रखने वाली हूँ उसको मैं 10 मिनट कम गरम करूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द पिज़्ज़ा। इसमें से आप देख सकते हैं
धुआं भी निकल रहा है. सो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, इट इज़ लुकिंग वेरी टेस्टी बिकॉज चीज़ भी बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है, सॉस भी अच्छे से है, उसके ऊपर वेजेस भी हैं और ये ऐसा रॉ पड़ा हुआ है, मतलब अब इसको हमने गर्म नहीं किया और इसको हमने थोड़ा सा कुक करके इस तरह से. सो इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ लुकिंग लाइक अ पिज़्ज़ा. और ठीक है, घर पे बनाया है तो इतना अच्छा तो नहीं होगा और विदाउट अनियन एंड गार्लिक, सो इट आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम इट, बट इट इज़ डूइंग रियली वेल. I gotta let you know, it's so incredible. Let's repeat the same process with this also. इसमें मैं 8 मिनट्स तक रखूँगी बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उसका बेस जल गया है, हालांकि बहुत ही थोड़ा सा जला होगा जिसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके टेस्ट में. तो अब इसको 8 मिनट ही मैं रखूँगी. तो ये फर्स्ट वाला पिज़्ज़ा था. अभी कट करने के लिए इसको मैं नाइफ़ से ही कट कर दूँगी, 4 स्लाइसेस में इसकी बना दूँगी. अभी कैसे कैसे मैंने किया कट इसको, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था इसका बेस, नॉट दैट हार्ड बट सेंटर से थोड़ा सा हार्ड हो गया था बिकॉज ऑफ 10 मिनट्स के कारण. नाउ आई एम गोइंग इट टू माई पीपल टू टेस्ट इट. और इनको मैं पूछूँगी कि क्या आपको थोड़ा सा भी सही लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत टेस्ट मैच कर रहा है बाहर से या नहीं. सो आई थिंक दे हैव लाइक्ड इट एंड बिकॉज़ उन लोगों ने 2-2 स्लाइसेस खाई हैं. अभी जो दूसरा पिज़्ज़ा भी बन रहा है उसमें से भी वो लोग खाएंगे. सो आई थिंक दे हैव लाइक्ड इट. सो दिस इज़ द सेकंड वन जिसको हमने बनाया था. ऑल्दो देखने में ये इतना सही नहीं लग रहा बिकॉज़ चीज़ सारा नीचे है, बट ठीक ही लग रहा है. मतलब उसके कंपैरिजन में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में क्योंकि सारी सॉस ऊपर है, सिर्फ रेड रेड हुआ है. तो ये ऐसा लग रहा है बिना चीज़ के बनाया. तो इसको भी सेम ही वे से कट करूँगी, नाइफ़ से मैंने इसको कट किया है. और ये थोड़ा सा इसका बेस सॉफ्ट रह गया था. तो अगर आप भी घर पे बनाओगे तो आप 8 मिनट तक ही इसको रखना, ज़्यादा इसको ओवर मत कर दीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ये मैं क्लिप फिर से एंड में लगा रही हूँ. सो दिस इज़ द फाइनल पिज़्ज़ा एंड इट टर्नड आउट रियली वेल. नॉट एग्जैक्टली लाइक वॉट वी गेट आउटसाइड बट होममेड के हिसाब से इट इज़ रियली वेल. सो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे. थैंक यू सो मच.